Hello students, in this session we will discuss about the second chapter of electrostatics and the topic is electrostatics of conductors. So as we know that conductor is those substance which allow electricity to pass through it easily, and we can say that simply all metals are good conductor because they contains free charges, they contains free electrons, that's why they are good conductor of electricity. So let us discuss some important results regarding the electrostatics of conductor. So first result is in electrostatic equilibrium. Focus the term equilibrium. In electrostatic equilibrium, electric field is zero everywhere inside the conductor. The term is clear. In electrostatic equilibrium, the electric field is zero everywhere inside the conductor. So in order to understand this statement, let us take two plates, two metallic plate, charged plates. One is positively charged and another is negatively charged, just like the plates of a capacitor. This is positively charged plate and this is negatively charged plate. So these plates produce an electric field E naught. Definitely electric field is directed from positive plate to negative plate. This is the electric field inside these two plates is E naught. Is it clear? Now let us place a conductor, a conducting slab ABCD between these two plates. It means inside the electric field E naught. Clear? What happened in this situation? The free electrons of this conducting slab experience force due to this electric field E naught. Clear? And free electrons starts migrating, start moving from phase AB to phase CD, because electrons experience repulsion due to negative plate and experience attraction towards the positive phase. In this situation, all the electrons move from AB to CD. As a result of it, plate CD become phase CD become negatively charged and plate AB become positively charged. And this is basically, you can say this is induced charge over the surface. This charge are called induced charge because it developed because of the electrostatic induction due to this electric field E naught. अब देखें इस स्लैब के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव its value is E naught and again positive to negative. This is the electric field. अब चार्जेस के माइग्रेशन हो रहे हैं, फेस AB से CD पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. इनके आने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इंडक्शन से पॉजिटिव टू नेगेटिव EP is the electric field due to polarization of this conducting plate. चार्जेस माइग्रेट हुए A से B की ओर, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ या नेगेटिव चार्ज, तो जो इंडक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो हुआ EP. अब ध्यान से देखिए, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे AB से CD के तरफ, और EP क्या करेगा, EP जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ वो देखिए वो फर्दर उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज करेगा, यानी E नॉट मूव कराएगा और EP अपोज करेगा. चार्जेस तब तक मूव करती रहेंगी जब तक EP E नॉट के इक्वल नहीं हो जाए. जब EP यानी कि पोलराइजेशन या इंडक्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, क्लियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक चार्जेस मूव करती रहेंगी. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो चार्जेस का फर्दर कोई माइग्रेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, और उसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. अब वहां इक्विलिब्रियम यानी इलेक्ट्रोस्टेट है, चार्जेस स्टेशनरी हो गए, अपने अपने पोजीशन पे रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रोस्टेट का कंडीशन है. अब क्या कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन EP इज इक्वल एंड अपोजिट टू E नॉट, यानी कि हम ये कहें E नॉट इज इक्वल टू माइनस EP. आप कह सकते हैं यानी कि E नॉट प्लस EP इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है. कब, इक्विलिब्रियम में, जब चार्जेस माइग्रेट हो चुके हैं, इंडक्शन से पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो गया. तो ये कुछ टर्म उससे रिलेटेड है, आप नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. ठीक है.
अब जरा देखें कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई केविटी है, मान लो कंडक्टर के ऊपर एक हमने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव चार्ज दिया, तो डायरेक्शन तो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर कोई केविटी है, कहीं पे कोई खोखला पोर्शन है, तो उस केविटी की क्या बिहेवियर है, बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है उसका, आगे हम पढ़ेंगे। तो इस केविटी के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पे कोई चार्ज यहां पे डेवलप नहीं होता है, कहीं भी कोई चार्ज वहां पे अपीयर नहीं होता। केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, केविटी के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो, और पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द कंडक्टर। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट्स में। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कंडक्टर के अंदर कोई भी केविटी है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बात आप यहां से समझ सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। इसका कहना क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है कि चार्ज के ऊपर, अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज अगर हम देते हैं तो उसके ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको समझते हैं जरा। सपोज किया कि ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया, और चार्ज देने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे एक हम एरिया एलिमेंट या कोई डिस्टेंस का एलिमेंट ले लें dr, ठीक है, डिस्टेंस का एलिमेंट्री डिस्टेंस ले लिया dr, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड हुआ, थीटा एंगल, नॉर्मली नहीं है, थीटा एंगल, आप लिख लिए। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकल आए, एक आपका E cos थीटा और एक आपका E sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों ही कंपोनेंट्स को। ये जो E cos थीटा है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू E cos थीटा। ड्यू टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट E cos थीटा, जो भी चार्जेस आपने कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट दिया है वो चार्ज कंडक्टर पे थ्रू आउट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो पूरा कंडक्टर पे फैलेगा, जिस तरीके से वो फैल सकता है वो चार्ज ड्यू टू द फोर्स, ये E cos थीटा उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मूव करेंगी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट E cos थीटा। द चार्जेस मूव थ्रू आउट ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका पूरी तरीके से अपने अपने पोजीशन पे वो सेट हो गए, तो फिर वहां कौन सा कंडीशन स्टेट अचीव होता है, इलेक्ट्रोस्टेट का। वहां पे चार्जेस स्टेशनरी हो गए, फर्दर चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब फर्दर चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, आप कह सकते हैं कि E cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है E cos थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब E cos थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं होगा चार्ज के कंडक्टर के सरफेस से, तो जीरो कौन हो रहा है, सो जीरो हो रहा है आपका cos थीटा। cos थीटा जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर कोई लाइन लिया हमने सरफेस के ऊपर पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यू कैन से बाय दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो कि जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट का कंडीशन आया, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्सेज जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब cos थीटा ही जीरो होगा। cos थीटा जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहां से ये प्रूव होता है कि हमेशा जो भी चार्जेस देंगे वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान रखना है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज मोर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। एंड इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, कंसीडर ये एक नेगेटिव चार्ज है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो लेस देन जीरो, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली रेडियली इनवर्ड होगा टुवर्ड्स द कंडक्टर। तो यहां ये हो गया, यहां टुवर्ड्स हो गया। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, बाकी के प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
थर्ड रिजल्ट देखें तो थर्ड रिजल्ट ये कह रहा है, पॉइंट इज कि द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। इसको समझने के लिए सपोज किया कि ये हमारा एक कंडक्टर है, इस पे चार्जेस हमने दे रखे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसे करके ये सरफेस के ऊपर है। नॉर्मल कंडीशन में सपोज किया कि इसके अंदर इंटीरियर में हमें चार्जेस की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस यहां ड्रॉ करते हैं। एक इंटीरियर में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई एलिमेंट्री सरफेस ले लिया आपने, ds, इसके थ्रू मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। तो E क्या होता है इनसाइड द कंडक्टर, जीरो होता है। डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर में एक गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, इसको समझेंगे। आप क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट उसका। नाउ इनसाइड द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर के अंदर की बात करें, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इज इट क्लियर कट, जीरो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द कंडक्टर, सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगा तो ये वैल्यू भी जीरो होगी। एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होता नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो इसका मतलब हुआ कि Q इज इक्वल टू जीरो, नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब सपोज करते हैं, consider a condition in which we have given some excess amount of positive or negative charge in the interior of this conductor। इसके अंदर कहीं भी आपने कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज आपने इंटीरियर में दिया है तो उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आपने दिया है तो उस नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, और वो मैक्सिमम सेपरेशन अटेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ द कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन लाइक चार्जेस, द चार्जेस tries to reside at maximum separation। in this situation all the charges reside over the surface। तो कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज आप दे उसके इंटीरियर में या किसी पोर्शन में, तो वो चार्ज कहां पे स्टोर होता है, उसके सरफेस पे आकर रिजाइड होता है। क्लियर, तो इंटीरियर में कोई भी चार्ज नहीं होता। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। यानी कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है, और वही वैल्यू उसके सरफेस पे होती है। यानी कि जो पोटेंशियल यहां पे है वही पोटेंशियल उसके सरफेस पे है। इस बात का, जो पोटेंशियल यहां है इंटीरियर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल उसके सरफेस पे भी है। इस बात का ध्यान रखें, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, सब एक दूसरे के इक्वल है। समझने के लिए क्या किया, यहां पे आपको एक डेफिनेशन क्लियर है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यानी ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू माइनस ddr ऑफ v, ड्रॉप पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, इनसाइड की बात कर रहा है, सरफेस की नहीं, इनसाइड की, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मींस डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज आल्सो जीरो एंड ddr ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये v जो पोटेंशियल है इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब v कांस्टेंट है। सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखें, हेंस v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा, अब सरफेस की बात कर लें तो सपोज किया कि एक हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एन कैप। एन कैप मींस नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होगा। यानी अगर कोई चार्ज यहां है चार्ज, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, ये भी क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर चार्ज पार्टिकल को आप ए से मूव करा के बी तक ले आते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। तो यहां पे फोर्स जो लग रहा है, ये देखिए फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है और ये डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, यानी कि क्यूई डॉट डी आर, यानी क्यूई डी आर कॉस 90 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन क्या हो गया जीरो। वर्क डन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। सरफेस ऑफ कंडक्टर बिहेव एज इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। There is no work done in transferring a charge from one point to another point over the surface of conductor. Clear? So in this situation you can say that inside the conductor at every point potential is constant and is equal as its value on the surface. Okay, let us discuss next point. So fifth result is the electric field at the surface of charged conductor is E is equal to sigma upon epsilon naught. If the conductor is surrounded by vacuum or air, in that situation electric field at the surface or just outside the conductor is sigma upon epsilon naught. And what is n cap? N cap indicating that it is normal to the surface, means perpendicular to the surface. Is it clear? And sigma is surface charge density of that conductor. Clear? So let us discuss how this we can get this value and how this explanation about. So in order to understand this, let us consider a short cylindrical Gaussian surface. Short cylindrical Gaussian surface just taken inside the conductor and outside the conductor. उसका कुछ हिस्सा कंडक्टर के अंदर है और कुछ हिस्सा कंडक्टर के बाहर है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट इज अ पिल बॉक्स। Clear? So we have taken a short cylindrical Gaussian surface of cross section area ds. ds, you can watch this ds. This is the area vector of this area element ds. An electric field obviously acting also normal to the surface is acting along ds through this area element, through this cross section of cylinder, and n cap is indicating normal to this surface. Clear? तो इस वैल्यू को पाने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया पी बॉक्स शेप का। अगर इनसाइड द कंडक्टर, इंटीरियर की बात करें तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर हम पूरे इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो इनसाइड में जो पोर्शन है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां कोई फ्लक्स कंसीडरेशन नहीं है। अगर हम आउटसाइड की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द area element ds on the cross section of cylinder। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो गॉस थ्योरम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E dot ds is equal to Q by epsilon naught. Is it clear? E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. E dot ds is basically, you can write E dot ds as E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में E और ds। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू Q by ds, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ds लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ds से अगर ds कैंसिल होता है तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, तो आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसके थ्रू, ये जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन। अब हम एक एरिया एलिमेंट इसके कॉर्ड सरफेस के थ्रू भी मान लें ds। अगर हम देख लें कि कॉर्ड सरफेस के थ्रू भी क्या कोई फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है,
तो इसके थ्रू अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर हम बात करें कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, E डॉट ds यानी कि E ds cos 90 डिग्री, ds और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यानी कि 0। इसका मतलब कि सो देयर इज नो फील्ड along कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हेंस net electric field at the surface, आप लिख सकते हैं कि सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप यानी नॉर्मल टू द सरफेस। तो एक्सप्रेशन होपफुली आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड की, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट, इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड बॉडी। इरेगुलरली शेप्ड बॉडी की बात करता है कि अगर बॉडी का शेप इरेगुलर है तो अलग अलग जगहों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। अब जरा हम माने एक रेगुलर शेप्ड बॉडी, एक स्फीयर, स्फीयर इज अ रेगुलरली शेप्ड बॉडी, इस पे कोई चार्ज क्यू दिया आपने और इसका रेडियस क्या है, आर है। स्फीयर इट इज अ रेगुलर शेप बॉडी यानी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेगुलरली शेप बॉडी का है तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अप चार्ज अपॉन एरिया यानी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इरेगुलर, ये तो रेगुलर शेप बॉडी के लिए हो गया, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू 4 पाई आर भी कांस्टेंट, तो सिग्मा इज कांस्टेंट। लेकिन अगर ये इरेगुलर शेप बॉडी है, कुछ इस तरीके का शेप है, आप ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का शेप, तो यहाँ पे एक सरफेस ऐसा है जिसका कर्वेचर कम है, रेडियस कम है, और एक सरफेस ऐसा है जिसका कर्वेचर ज्यादा है। तो ऐसे में हम क्या मानेंगे कि सिग्मा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जहां कर्व ज्यादा है यहां चार्ज ज्यादा स्टोर होगा एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। ये पोर्शन ज्यादा फ्लैट है, यहां रेडियस ज्यादा है तो यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। अगर रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा कम है, अगर रेडियस कम है, रेडियस की वैल्यू कम है तो सिग्मा ज्यादा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कर्व वाले पोर्शन पे जो शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट जिसको हम शार्प पॉइंट कहते हैं, तो शार्प पॉइंट पे ज्यादा चार्ज स्टोर होता है और फ्लैट पॉइंट पे कम चार्ज स्टोर होता है। इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट में आगे बढ़ के हम जरा सा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। तो बेसिकली हम इसके बारे में, शील्ड के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब कि समथिंग इज फॉर प्रोटेक्टिंग, क्लियर, सम स्क्रीनिंग इज क्रिएटेड फॉर प्रोटेक्टिंग समथिंग। तो शील्डिंग का जो बेसिक मतलब है, जरा हमें देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। सो इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain space from external electric field। किसी certain region को, किसी certain space को हमें external electric field के influence से बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने कंडक्टर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे उसके डिस्कस किए, बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस किए। उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया था कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में काम हो सकती है ना। अब हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर अ कंडक्टर विद केविटी, एक कंडक्टर है उसके अंदर एक केविटी, अंदर एक खोखला पोर्शन है, जैसे कि होलो स्फीयर हो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, या कोई मेटल का चेंबर हो जो अंदर से खाली हो, हॉलोड हो, ठीक है। एक कंडक्टर विद केविटी विथ नो चार्ज इनसाइड द केविटी, केविटी के अंदर कोई चार्ज हमने कंसीडर नहीं किया है। वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी इज जीरो। ध्यान से सुनिएगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस केविटी के अंदर क्या है, जीरो है। कंडीशंस क्या है, वॉट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द केविटी, केविटी का शेप कुछ भी हो, केविटी का साइज कुछ भी हो, आपके दिमाग में रखना है कि whatever the shape and size of cavity, the electric field must be zero inside the cavity. And another condition is, and whatever be the charge on the conductor and the value of electric field in which conductor is placed, कंडक्टर के ऊपर जो कुछ भी चार्ज दिया हमने, कुछ भी, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, if surface charge density is more than zero it means positive, if surface charge density is less than zero it means negative. Whatever the value of charge on be there on the surface of conductor, or whatever the value of external electric field in which the conductor is placed, there is no effect in the cavity. Clear? Still the electric field inside the cavity is zero, surface charge density inside the cavity is zero, and potential will be constant throughout. Clear? अब क्या कह रहा है कि अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नुकसान पहुंच सकता है, या हमें लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स के टाइम में हम देखते हैं कि बाहर में एटमॉस्फेरिक डिस्चार्ज हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर इन ओपन सराउंडिंग। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, तो ओपन में रहने से अच्छा है कि हम कार में या बस के अंदर बैठे। क्यों? बिकॉज द मेटेलिक बॉडी ऑफ कार एंड बस क्रिएट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। जो मेटल बॉडी है कार की या बस की अपने आप में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्ड का रोल प्ले करती है, और आप उसके अंदर हैं तो विदाउट बीइंग ग्राउंडेड, विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू अर्थ, यू आर सेफ इनसाइड दैट hollow body, clear, hollow chamber. So to protect delicate instrument from the external field, we enclose them in a hollow conductor. Such hollow conductor is called Faraday's cage. याद रखेंगे इसको, Faraday cage नाम दिया गया, यानी कि उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा सेफ है। यानी जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो, कार और बस में बैठना ज्यादा सुरक्षित है बाहर रहने के मुकाबले। अच्छा, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या जो सील्डिंग है, उसको हम इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम अचीव कर सकते हैं, देखते हैं। सो केविटी या चेंबर के टर्म में हमने स्क्रीनिंग पढ़ा। अब ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि एन अर्थ कंडक्टर ए बी यानी कोई भी जनरल कंडक्टर जिसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, कैन ऑल्सो एक्ट एज ए स्क्रीन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई कंडक्टर है जिसे ग्राउंडेड कर रखा है, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट स्क्रीन के तौर पर रोल प्ले कर सकता है। देखते हैं कैसे। एक कंडक्टर लिया आपने ए बी, और ए बी कंडक्टर के पास कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे प्लेस किया जस्ट अबव दिस कंडक्टर, तो क्या देखा आपने कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके अपर फेस पे आ गए। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो फील्ड लाइंस ये हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ये फील्ड लाइंस का शेप हो गया है ना। ठीक है, यहां पे हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, सेम वही कंडीशन, नेगेटिव 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 एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब क्या देखेंगे कि ये कंडक्टर के दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंडक्शन से चार्जेस डेवलप हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे देख सकते हैं, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडक्शन से वजह से ये सारे फिनोमेना डेवलप हुआ। अच्छा, अगर हम इस कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दें कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, अगर इस कंडक्टर को हम ग्राउंडेड कर देते हैं यानी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आके उसके वैकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस कंडक्टर ए बी के बिलो जो पोर्शन है उस वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये जो कंडक्टर है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक स्क्रीन का काम कर गया, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बच सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी क्या हो गया, आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सील्ड हो गया, ये स्क्रीन हो गया, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, ये अर्थड है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसकी जो बॉडी होती है उसको अर्थ से या ग्राउंडेड कर दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा। एक तीसरा आप देखते हैं कि केबल के अंदर 3 वायर होते हैं, 2 तो लाइव वायर होते हैं, एक आपका अर्थ होता है जो ग्राउंडेड होता है, जो कि मेटेलिक बॉडी से कनेक्टेड होता है कि कोई भी चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस होता है तो वो ग्राउंडेड हो जाए आपकी बॉडी को एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये जो फिनोमिना है इसका यूज करते हैं हम हाई वोल्टेज जनरेटर को सील्ड करने के लिए। जैसे आप पढ़ेंगे वैन डी क्राफ्ट जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर, तो उसको एक मेटेलिक चेंबर में इनक्लोज करके और चेंबर को ग्राउंडेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे बाहरी जो रीजन है, आउटर रीजन है, उसको हम बचा सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, इसके एप्लीकेशन समझ में आए। इसके और भी एप्लीकेशंस पढ़िए और कमेंट में उनसे डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।